हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलआरडीआई प्रेप। माय नेम इज समीर सरदाना और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव पजल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वांट क्वेश्चंस ऑफ कैट. The reason for discussion of this puzzle is these were the kind of puzzles which used to come in CAT exam जब CAT का duration 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का था या फिर 150 मिनट्स का, राइट. 120 मिनट्स और जब 150 मिनट्स का पेपर हुआ करता था 2003-4-5 के टाइम पे, तब इस तरह के इंडिपेंडेंट पजल्स, क्वांट बेस्ड पजल्स कैट में आया करते थे, राइट. इंडिपेंडेंट पजल्स मीन कि आपको एक पजल पे एक ही क्वेश्चन मिलेगा, राइट. एक पजल पे 3 या 4 क्वेश्चन का सेट नहीं होगा. विल बी वन क्वेश्चन वन पजल. सो यू नीड टू हैव एन आइडिया कि इंडिपेंडेंट पजल्स किस तरह से सोल्व करते हैं. बिकॉज 2020 इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, दे माइट आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. बहुत ईजी है, स्कोरिंग सेक्शन है, इजीली आप कर सकते हो. कोई थ्योरी का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ढंग से क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है और इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, so let's have a discussion on two small puzzles quant based from the previous year papers of CAT. And one more thing, on this channel of LRDA Prep Bacho, you will get a complete access, 100% syllabus coverage. You will get 100% syllabus coverage of your LR and DI syllabus. Everything related to your logical reasoning and data interpretation will be covered on this channel. I have already uploaded 70 plus videos for your CAT exam preparation, right? And will continue to do so for your remaining MBA entrance exams also. So many sets will be uploaded in a very before CAT, right? So if you start following the channel, if you start watching the video from the first video, you will be able to cover a lot of syllabus, right? Till then, till now, then whatever number of videos I have uploaded, right? So now let's have a look at it. So here is this puzzle that we will be discussing. Question says, a person can have at most 10 books. So the first condition is कि किसी भी person के पास maximum 10 books हो सकती हैं, 10 से ज़्यादा नहीं. At least one book of mathematics, one book of quality, one book of physics and fine arts. At least one book of mathematics, quality control, physics and fine arts. इन चारों सब्जेक्ट्स का at least one book आपको रखना है. For every mathematics books, more than 2 fine art books are required. That means अगर मैं एक mathematics का book ले रहा हूँ तो उसके सामने मेरे को minimum, राइट, मोर देन 2 फाइन आर्ट्स बुक्स होनी चाहिए. दैट मीन्स मिनिमम 3 फाइन आर्ट्स का बुक्स मुझे लेना पड़ेगा. And for every quality control book, more than 2 physics books are required. So if I'm taking 1 quality control books, then I require more than 2 physics. That means I need to have minimum 3 physics books. Okay. Mathematics, quality control, physics and fine arts books carry 4, 3, 2 and 1 points respectively. So इनके points आपको दिए. Math book के 4 points, quality control के 3 points and physics के 2 points and fine art के 1 point. Okay. Now the question is maximum point that can be earned. Maximum number of points. Points को maximize करना है. Points को maximize करना है तो सारी conditions को satisfy करना पड़ेगा. Conditions क्या हैं कि हर subject पे minimum एक book आपको लेना पड़ेगा. So let's first satisfy the condition कि अगर मैंने एक number of books मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, number of books मैं यहाँ लिख रहा हूँ. अगर points को maximize करना है, जितनी ज़्यादा books उतने ज़्यादा marks, उतने ज़्यादा points. सो बुक्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. बट उसमें कंडीशन है कि 10 से ज़्यादा नहीं जा सकते, और 10 से ज़्यादा में भी कंडीशन है कि अगर 10 से कम आप रख रहे हो, राइट, 10 या 10 से कम रख रहे हो, तो आपको मिनिमम एक बुक सबका रिक्वायरमेंट है. सो लेट्स से कि अगर मैंने एक बुक मैथ्स का लिया, एक क्वालिटी कंट्रोल का, एक फिजिक्स का, एक फाइन आर्ट्स का, ये तो मुझे लेना ही है. बट क्वेश्चन में कंडीशन है कि 1 मैथ्स के सामने 3 फाइन आर्ट्स आपको लेना पड़ेगा. सो 1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया तो मिनिमम फाइन आर्ट्स की बुक्स 3 लेनी पड़ेंगी. जैसे क्वेश्चन कंडीशन. एक क्वालिटी कंट्रोल के सामने 3 फिजिक्स भी. अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल लिया है तो फिजिक्स की मिनिमम 3 लेनी पड़ेंगी आपको. सो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों का 1-1 बुक लेता हूँ तो इन दोनों का मिनिमम 3-3 लेना पड़ेगा. नाउ 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8 बुक्स तो हो गया. पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है तो बुक्स को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट यू कैन कैरी? 10. ओके, तो कौन सी बुक्स और लेनी पड़ेगी? कैन आई टेक 1 मोर मैथ्स बुक्स? अगर मैंने मैथ की 1 और ली तो फॉर एवरी मैथमेटिक्स बुक्स आई नीड 3 फाइन आर्ट. तो मेरा टोटल नंबर ऑफ बुक्स 12 पे चला जाएगा, राइट. फॉर मैथ्स के लिए मुझे 3 फाइन आर्ट्स लेना पड़ेगा. सेम इज अ केस कि अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल 1 लेता हूं तो फिजिक्स भी 3 और लेना पड़ेगा, तो भी 12 हो जाएगा. सो दैट मीन्स देयर इज नो ऑप्शन ऑफ टेकिंग फिजिक्स, मैथ्स और क्वालिटी कंट्रोल बुक्स. मैथ्स और क्वालिटी कंट्रोल की आप कोई भी बुक और कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 10 वाला कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, तो फिर क्या करना चाहिए?
तो पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए फिजिक्स के सामने 2 पॉइंट्स है। क्या फिजिक्स की बुक्स के सामने कोई कंडीशन है क्या कि इतनी फिजिक्स की बुक्स है तो इतने फाइन आर्ट्स का बुक्स लेना पड़ेगा? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो फिर 2 बुक्स जो बची, 8 बुक्स हमने ले लिया, 2 बुक्स जो हमारा बचा, वो 2 बुक्स कौन सा होना चाहिए? फिजिक्स या फाइन आर्ट? वो वही होना चाहिए जिसमें पॉइंट्स मैक्सिमाइज हो। पॉइंट्स किस में ज्यादा है? इन दोनों में पॉइंट आपके फिजिक्स में ज्यादा है। तो दैट मीन्स आपको 2 फिजिक्स का बुक और लेना पड़ेगा पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो टोटल यू सी दैट टोटल आपके पास 1 मैथ्स हो गया, 1 क्वालिटी कंट्रोल, 5 फिजिक्स एंड 3 आपके पास फाइन आर्ट्स हो गया। मैथ्स के 4 पॉइंट, सो 1 into 4 प्लस क्वालिटी कंट्रोल के 3 पॉइंट्स, 1 into 3, फिजिक्स के 2 पॉइंट्स, 5 into 2 प्लस फाइन आर्ट का 1 पॉइंट। सो पॉइंट्स मैक्सिमाइज कितने होंगे? मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स आर 4 into 1 4 प्लस 3 into 1 3, 5 into 2 10 plus 3 into 1 that is 3. The total number of points are 4 plus 3 7, 7 plus 3 10, 10 plus 10 20. So 20 is the answer of the question, right? So you see that very small puzzle, you can easily solve it, right? It will not take much time. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत easily आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? So इस तरह की क्वेश्चंस जब कैट शॉर्टर ड्यूरेशन का था, राइट, 2 hours 120 minutes या फिर 150 minutes का, तो इस तरह की पजल्स कैट में पहले पूछे जाते थे। Let's have a one more question, right? Look at this question again, a basic quant puzzle. Quant का बिल्कुल basic level पे concept इसमें आपको use करना है. Let's see how to solve this question. A total of 80 kg of material, 80 kg of material to be couriered to a distance of 10 kilometer. 10 kilometer तक आपको इसको transfer करना है. It can be packed in 10, 20 or 40 kg only. So इस 80 kg के material को आप को जो पैकिंग करना है वो 10, 80 और 40 kg में ही आपको पैक कर सकते हो। सो देयर आर 3 ऑप्शंस, इधर यू विल पैक इट इन 10 kg और यू विल पैक इट इन 20 kg और यू विल पैक इन 40 kg। सो अगर मैं 10 kg में पैक करूंगा तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पैकेट्स आई विल बी हैविंग? नंबर ऑफ पैकेट्स, राइट? 80 kg के मटेरियल के 10 kg के अगर आप पैकेट्स बनाओगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट यू विल हैव वुड बी 8, 20 kg में 4, 40 kg में 2 बनेंगे। ओके, ना कोरियर चार्जेस आर ₹10 पर आवर। 1 घंटे का 10 रुपए का चार्ज रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वेट्स है, राइट? कोरियर्स ट्रेवल एट 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 0 kg लोड। ओके, 0 kg का लोड भी पॉसिबल है। सो 0 kg, बट अगेन 0 kg लेना नहीं है, इट कैन बी पैक्ड इन 10, 20 और 40 kg। अगर 0 kg लोड होगा तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 0 kg का कोई पॉइंट नहीं है। 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 kg। सो 10 kg का पैकेट जो है उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके, 2 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 kg का अगर पैक है तो उसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होगा, और 1 किलोमीटर पर आवर फॉर 40 kg, 1 किलोमीटर पर आवर फॉर 40 kg। 10 किलोमीटर का ट्रैवलिंग है, राइट? अगर आपका पैकेट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा तो कितने आवर्स लगेंगे? बिकॉज चार्जेस आवर पे डिपेंड करेंगे, कितने आवर्स की जर्नी है, दैट विल डिसाइड कि कितने चार्ज लगेंगे। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 आवर्स लगेंगे। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 आवर्स लगेंगे, राइट? सो 2 आवर्स अगर यहाँ पे लगेंगे, दैट मीन्स अपने को मिनिमम कॉस्ट देखना है, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, राइट? कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। लेट्स सी कि तीनों में कितना आएगा चार्ज, राइट? 2 आवर्स, सो पर आवर चार्ज हो गया 10 रुपीज, तो 2 घंटे के चार्ज होंगे 20 रुपए। तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा पर पैकेट। यहाँ 5 घंटे लग रहे हैं, 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपको 50 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा पर पैकेट। यहाँ पे 10 आवर्स लग रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा पर पैकेट। नंबर ऑफ पैकेट्स आर 8, 20 into 8, चार्ज होगा 160 टोटल। 50 रुपए पर पैकेट, 4 पैकेट्स हैं, सो 200 रुपीज यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा। 100 रुपीज पर पैकेट, 2 पैकेट हैं तो 200 रुपीज आपको यहाँ चार्ज लगेगा। मिनिमम कितना लगा? 160, राइट? सो मिनिमम कॉस्ट इज 160 एंड दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यू सी दैट, सो वेरी बेसिक पजल, बिल्कुल बेसिक सा टाइम स्पेस डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इस तरह के पजल्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। इस साल इस तरह के क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। So thank you so much for watching this video, बच्चों. I'll be covering a lot of content on this channel, right? I have informed to you already that on this channel you will get 100% LR and DI coverage for your LRD exam section preparation, and
if you're willing to attend all of my live sessions on Unacademy Plus, you can use my referral code LRDI Samir. This will help you in getting a 10% off on Unacademy Plus subscription, and you will be able to attend all of my live sessions on Unacademy Plus. Thank you so much for watching the video, and please subscribe to the channel and share it with all of your friends. Thank you.